Hello students. Today we are going to learn chapter 19 of biology class 11th. The chapter name is excretory products and their elimination. Students, this is a very important chapter and also very interesting. इसीलिए पहले से डरिए नहीं. एक्सक्रीशन से या एक्सक्रीटरी प्रोसेस से स्टूडेंट्स नॉर्मली डरते हैं. So you don't have to get scared. I'll make it simple for you all. So before discussing the chapter, tell me कि आपके डे टू डे लाइफ में यू नो व्हाट इज़ यू ऑल कंज्यूम एंड देन यू ऑल एक्सक्रीट ऑल्सो ना. सो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता क्या है? So excretion is nothing but the elimination of metabolic waste products from the animal body to regulate the composition of body fluids and tissues. यानी कि जिस प्रोसेस में हम अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, जो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी को नीड नहीं है, जितने न्यूट्रिएंट्स बॉडी को लेना है ले लेते हैं, और जब वो जो वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल जब बॉडी से लाजमी निकलना है, इट हैज़ टू गो आउट ऑफ द बॉडी. ओके, दैट कैन बी ammonia, uric acid, urea, carbon dioxide, and ions like sodium, potassium, calcium, and phosphates and sulfate. So your urine, okay, sweat, all this composes of your excretory products. Now, in sub में ammonia is the most toxic and uric acid is the least toxic. Okay, ये question आता है. Okay, and the process of removing ammonia, बायोलॉजी में इसको टर्म दिया गया है अमोनोटेलिज्म. क्या है? अमोनोटेलिज्म. रिपीट अगेन, इट्स अमोनोटेलिज्म. एंड ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया are called ammonotelic, where organisms that release urea are called ureotelic. Okay, and organisms that release your excrete uric acid are called urotelic. In of this each I will tell you all example. जो अमोनोटेलिज्म जो दिखाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का नाम एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अमोनोटेलिक. बेसिकली होते हैं बोनी फिशेज एंड ऑल. सो यू हैव एग्जाम्पल bony fishes, then you have aquatic amphibians, okay, and insects. Whereas urotelic जो organisms यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये है मैमल्स. ओके, दे आर मैमल्स जैसे हम लोग हैं. ओके, देन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, and the organisms that excrete uric acid are called urotelic organisms. And here the examples include reptiles, birds, and land snails. So I hope you have understood the different organisms, their categories of excretion, what are they called. Okay, so here I've got a table for this. You can just take a screenshot of it, wherein I have mentioned that the nitrogenous waste products excreted by different organisms in the form of ammonia, urea, and uric acid, the chief nitrogenous waste, in a table format. Here it's given. Here what I have given is ammonia requires a lot of water to be excreted compared to urea and then uric acid, and energy required but in ammonia to be excreted is less. ये एक एरो मतलब कम, 3 एरो मतलब ज़्यादा, ऐसे. तो इस तरीके से मैंने लिखा है. टॉक्सिसिटी भी जैसे मैंने कहा अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है एंड यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक. और एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई हैव given over here. So examples of urotelic is not written. You all can write snails, reptiles. So this type of tables help in understanding better and making notes also. अच्छे notes होंगे तो अच्छे से याद भी हो जाता है. ठीक है. Now moving further, let us go to the human excretory system. Before coming to human excretory system, I will definitely discuss about excretory organs of different phylums. Okay,
द फर्स्ट फाइला तो जनरली आप लोग को पता ही है, वी नो दैट वी स्टडी 10 फाइलम्स, दैट इज पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, एंड वी बिलोंग टू द कॉर्डेटा ग्रुप, राइट. परम, यहाँ पे परम याद रखना. परम यानी कि पीसेस, एव्स, रेप्टाइल्स, ओके, एम्फीबियंस एंड मैमल्स. सो ये मेरा निमोनिक. ना पोरीफेरा बेसिकली दो स्पॉन्जिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है ना, वो जनरल बॉडी सरफेस है, GBS भी लिख सकते हो. यहाँ पे कोई नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता. ओके, देयर इज नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन. और जैसे एग्जाम्पल स्पॉन्जिस में ही आप लोग देख लो. स्पॉन्जिस में जो एक्सक्रीटरी, ये क्वेश्चन भी आया था एक बार नीट में. स्पॉन्जिस में बेसिकली ऑस्क्यूलम से एक्सक्रीशन होता है. उसी तरह सिलेंट्रेटा या टेनोफोरा का भी जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है. देन यू हैव प्लैटीहेलमिन्थस, दोस फ्लैट वर्म्स एंड ऑल. हियर दिस क्वेश्चन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम यर कि यहाँ पे एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है. सो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेम सेल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सोलेनोसाइट्स. Okay, so these are the terms used. You have to remember this. You have to remember it in any cost. Then you have excrementhus, that is round worms and all. Example Ascaris. Here there are again special cells for excretion, that is rennet cell. Then you have Annelida, next phyla. Okay, Annelida, earthworm, leech, ये सब examples हैं उसके. यहाँ पे नेफ्रीडिया है जो स्पेशल और जो पार्ट है, एक्सक्रीटरी पार्ट है उसका, जिससे एक्सक्रीशन होता है. देन यू हैव आर्थ्रोपोडा. ना यू नो दैट आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम. ओके, एंड ऑब्वियसली बिगेस्ट फाइलम तो उतना डाइवर्सिटी. उसी तरह आर्थ्रोपोडा में नहीं कॉकरोच टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, कॉकरोच है, क्रैब्स है. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होते हैं. ओके, तो डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स होते हैं. दस मेन वाला जो डिस्कस कर रही हूँ मैं वो है क्रुस्टेंशियंस, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स या मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड अरेकाइंड्स. ओके, ये इट्स रिटन. ये बेसिकली मैल्फिजियन ट्यूब्यूल जो होता है ये कॉकरोचेस वगैरह में होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह में. क्रुस्टेंशियंस ये ग्रीनलैंड्स बोल के एक ऑर्गन होता है उसके अंदर. ओके, और एरेकाइंस के अंदर कॉक्सल ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. देन इन मोलुस्का एग्जाम्पल विल बी ऑक्टोपस एंड ऑल, सॉफ्ट वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑक्टोपस एंड ऑल. ओके, यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस, यहाँ पे बहुत से टेक्स्ट बुक में BOJANES दिया है, ये साइंटिस्ट का नाम है. देन केबर्स केबर्स ऑर्गन. ओके, या किडनी भी होते हैं मोलस्का में, लेकिन वो थोड़े लेस डेवलप्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एकाइनोडर्मेटा. एग्जाम्पल इज एकाइनोडर्मेटा इज अ स्टारफिश. ओके, हियर देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. There can be a question in which of the phylum excretory organs are absent, so it's Echinodermata. Okay, now एक्सक्रीटरी तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर एब्सेंट है तो एक्सक्रीशन होता कहाँ से है, तो एक्सक्रीशन होता है थ्रू वाटर वैस्कुलर सिस्टम. ओके, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स. whatever terms I have written, that is more than enough. I'll give you all the PDF of the notes. Okay, then hemichordates include tongueworms and all. The excretory organ is the proboscis gland. Then you have chordata group, where you have notochordates and cephalochordates. Notochordates के अंदर न्यूरल ग्लैंड्स होते हैं, whereas cephalochordates में सेलिनोसाइट होता है. Now again you know that chordates के अंदर मेन जो क्लासिफिकेशन है chordates के अंदर वो है परम, यानी कि पीसेस, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल. जो फिशेस होते हैं और जो एम्फीबिया होता है, ओके, ये मोनोनेफ्रिक होते हैं. ओके, वेर रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, या राम याद कर लो इसको. ओके, ये मतलब ये एव्स है ना, बर्ड्स ऑल्सो नोन एज एव्स. ओके, दे आर मेटानेफ्रिक. यहाँ पे जो होता है फिशेज और नेफ्रॉन्स आर विदाउट लूप ऑफ हेनली. LOH स्टैंड फॉर लूप ऑफ हेनली. इधर ही याद कर लो, मैं बार बार LOH लिखने वाली हूँ, अगेन एंड अगेन आई राइट. एंड देन मेटानेफ्रिक जो होते हैं राम वाले, वो उनके अंदर क्या होता है, लूप ऑफ हेनली में लूप ऑफ हेनली होता है, एंड देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डेफिनेटली होता है. सो दिस आर की टर्म्स एंड की
important notes which you will have to note down. Okay, different excretory organs of different phylum. Now going back to the human excretory system, you all know that human excretory system consists of what? Human excretory system consists of the kidney, a pair of kidneys. Definitely know about it. I can show you all the diagram. Okay, so this is the diagram. The human excretory system, yes, it consists of a pair of kidneys. एक kidney ऊपर होता है compared to the other. Okay, a pair of ureters, ये देखो ये ureter होता है. Everything is given in the diagram in your NCERT textbook also. You all can note it down, and you all have also learnt it in the 10th standard. If you all want detailing of the structure and all, you all can go to my video in B Scholar Standard 10th excretory system. Otherwise, no need to go in detail of the diagram over here. excretory जो system का ये तो draw करने के लिए नहीं आएगा, but हाँ structure of nephron ज़रूर आएगा जो मैं आगे पढ़ाऊँगी. Okay, here you have to note down that the human excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and urethra. Pair of kidneys, again I am saying pair of ureter, okay, a urinary bladder and a urethra. Okay, then we can definitely study each kidney के अंदर तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे. You can see that the kidney is further divided into the outer part which is cortex, and this inner part is your medulla. Okay, outer part is your cortex and inner part is your medulla. Now focusing on just on the kidneys, you can see this. How is it looking? It's looking like a reddish brown bean type structure, right? Okay, you all have to draw this diagram. Okay, it is situated between last thoracic and lumbar vertebra. Location comes for exam. कहाँ है? Last thoracic and lumbar vertebra. Each kidney has a notch on its side called hilum. Okay, and through which ureter, blood vessels and nerves enter. And here see, you can see this is the medullary pyramid, very important. Okay, this is the renal column. Please, if you know the diagram properly, then definitely you will understand the functioning of the kidney very well. So याद रखना कि इसको medullary pyramid बोलते हैं. इसी में मेरा मतलब जो नेफ्रॉन्स होंगे इसी के अंदर होंगे. ओके, नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनली कुछ मतलब इस साइड मतलब जगह लूप ऑफ हेनली मेड्यूला में ज़्यादा भी हो सकता है या मेड्यूला में कम भी हो सकता है. कॉर्टेक्स में उसका ज़्यादा पार्ट हो सकता है. उस बेस पे वो डिवाइडेड भी है. आई विल लेट यू नो अबाउट इट. ओके, आई विल लेट यू नो अबाउट इट. ओके, see, because this is the hilum, and inside the hilum you can see broad funnel like structure, right? Yeah, see, inside the hilum funnels like shaped called renal pelvis. So this is your renal pelvis. Then with projection called calycis, and inside the kidney are two zones, outer cortex and inner medulla. This is your outer cortex and inner medulla, and medulla is divided into what? Medullary pyramids. तो ये जो inner medulla part, ये देखो ये outer cortex part है, ये inner medulla, and medulla is divided into what? Medullary pyramid. pyramid जैसे structures है ना, ये देखो pyramid जैसे structures हैं. तो outer cortex और inner medulla. Okay, cortex extends between the medullary pyramids. जो कॉर्टेक्स जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स, सॉरी मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी, और जो कॉर्टेक्स होता है एक्सटेंड्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टनी. So this is the diagram and this is the notes related to it. I will send all the notes definitely, but please do practice the diagram and understand it very well. Now going back to the structure of nephron. Okay, what is the nephron? A nephron is the functional unit of kidney, और each kidney में around 1 million क्या होते हैं? Each kidney में around there are 1 million nephrons. Just imagine, each kidney is about 1 million nephron, or each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubule. ये वाला उसका पार्ट है ग्लोमेरुलस, और ये जो देखो ऐसे लाइन बनाएंगे, पहले ये वाला पार्ट ड्रॉ करो, फिर ये नीचे जाके ऐसे ऊपर आइए, फिर यहाँ पे
पीसीटी है, ये पीसीटी है आपका, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनली है, एलओएच, ये पूरा लूप ऑफ हेनली है, देखो एक लूप की तरह। ये पीसीटी है और ये पीसीटी एंड डीसीटी, you have to note it down, and this is your collecting tubules. This is your PCT and this is your DCT. Okay, distal convoluted and proximal convoluted tubule. Okay, now this is your proximal convoluted, this is distal convoluted, this is your loop of Henle, this is your glomerulus, and this is your collecting duct. So I hope you know this diagram. You all should be knowing by now. Now द नेफ्रॉन, जैसे मैंने कहा दो पार्ट है, एक पार्ट क्या है इसका ग्लोमेरुलस एंड दूसरा है रीनल, ये सब रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसके, ठीक है। और ग्लोमेरुल्स, अगर ये कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, तो ये जो ग्लोमेरुलस में जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैपिलरीज, tuft of capillaries formed by efferent arteriole. Now students remember, ये जो ब्लू दिख रहा है ना आप लोग को, ये लाइन जो पर्पलिश लाइन दिख रहा है, ये ब्लड का फ्लो के लिए कैपिलरीज बनाया मैंने, ब्लड फ्लो के लिए। क्योंकि देखो होता क्या है, होता ये है कि ब्लड से तो ही, तो देखिए जो ब्लड से ही तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग से। सबसे पहले जो एफरेंट आर्टेरियल, जो मोटा वाला है ना, ये एफरेंट आर्टेरियल है और ये इफरेंट आर्टेरियल, याद रखना इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका जो रेडियस ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, ऐसे याद रखिए। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियल है, ये सबसे पहले जो है एक तो ग्लोमेरुलस में आती है और ब्लड यहाँ पे लेकर आती है, और इफरेंट आर्टेरियल से ब्लड निकलती है। यहाँ पे पहले वो फिल्ट्रेट होती है, देखो कैपिलरीज यहाँ पे बनता है, थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे टाइम क्यों लेता है? क्योंकि फिल्ट्रेशन होके अंदर चला जाए, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फिर अंदर चला जाता है पीसीटी में, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। अब जो बचा हुआ ब्लड है, मतलब फिल्टर होने जो बचा हुआ ब्लड है, वो ऐसे ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, ठीक है। और वही ब्लड कैपिलरीज, याद रखना, उसको हम इफरेंट आर्टेरियल से जाते हुए, ये जो फॉर्मेशन है ये कुछ नहीं बल्कि ये लूप ऑफ हेनली है, ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनली है, लेकिन ये वाले पार्ट को हम वासा रेक्टा भी कहते हैं। ओके, लूप ऑफ हेनली से जो कैपिलरीज गुजरते हैं उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। ये पहले याद रखिए। पीसीटी से जो गुजरता है ब्लड कैपिलरी, उसका अलग नाम है, पहले यहाँ से याद रखिए। लूप ऑफ हेनली से जो गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। प्लीज़ 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 याद रखिए। नाउ जैसे मैंने कहा कि ब्लड यहाँ पे आया, फिल्टर हुआ, और बहुत ये यहाँ पे अल्ट्रा मतलब इस तरह फिल्टर हुआ, उसके बाद में बचा हुआ ब्लड ये कैपिलरी से निकल गया। अब यहाँ पे जो वेस्ट चला गया, ब्लड से जो वेस्ट चला गया फिल्टर होके, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट, देखो ई से इफरेंट, ई से इफरेंट आर्टियोल मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ये जो है ये हमारा पर्टेबुलर कैपिलरी है और ये हमारा इफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल। एग्जिट, ई से इफरेंट, ई से एग्जिट, ऐसे याद रखना। ब्लड एग्जिट होता है यहाँ से, ओके, यहाँ से एग्जिट होता है और यहाँ से वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल। नाउ जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो ये बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ से कंटिन्यूड होता है वे ट्यूबुलर प्लांस, यानी कि पहले पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, फिर लूप ऑफ हेनली बनता है, ये ब्लैक वाला पार्ट देखिए, लूप ऑफ हेनली बनता है, फिर डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, और उसके बाद ये जो बनता है हमारा क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, लेकिन अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो काम ऐसे करता है, जैसे मैंने कहा, वन मोर थिंग, जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, जो पीसीटी और ये जो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये मैं डिवाइड क्यों कर रही हूँ कि ये वाला पार्ट ना कॉर्टेक्स है किडनी का, और ये नीचे वाला पार्ट मेड्यूला है। देखो ये वाला पार्ट पूरा कॉर्टेक्स है, इसीलिए बनाने में बहुत अंडरस्टैंडिंग से बनाई है, एक लाइन बनाई है। फिर ये वाला पार्ट और ये जो ऊपर वाले पार्ट में हमारा पीसीटी होता है, डीसीटी होता है और
और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और नीचे मतलब ये मेड्यूला, ये वाला पार्ट कौन सी रीजन है, कॉर्टिकल रीजन में। लेकिन ये जो लूप ऑफ हेनली किस रीजन में है, हमारा लूप ऑफ हेनली जो है वो हमारे मेड्यूला रीजन ऑफ द किडनी, क्योंकि मैंने शुरू में आपको मेड्यूला कॉर्टेक्स दिखा दिया था। ओके, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग समझिए, क्योंकि और जैसे मैंने कहा कुछ नेफ्रॉन्स, जैसे मैंने कहा ये जो नेफ्रॉन्स भी दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जुक्स्टा एंड कॉर्टिकल। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिए। ये देखो, जैसे ये यूनिट है ना, ये किडनी की यूनिट है, राइट। यहाँ पे ये नोटिस करिए कि कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये मेड्यूला वाले, कुछ वाले नेफ्रॉन्स, हर में नेफ्रॉन है, कुछ के नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनली मेड्यूला तक जा रहे हैं, लेकिन कुछ के मेड्यूला तक जा रहे हैं। यहाँ पे देखो छोटा सा नेफ्रॉन है, यहाँ मेड्यूला तक जा रहा है। तो जिसका छोटा सा नेफ्रॉन है, जिसका कॉर्टिकल एरिया में ही नेफ्रॉन ज़्यादा है, मेड्यूला में कम है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जिसका मेड्यूला में ज़्यादा है उसको हम जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, उसको हम जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे जो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का मेजर रोल होता है, जुक्स्टा मेडुलरी का मेजर रोल होता है पानी का एब्जॉर्प्शन करना, याद रखना, वाटर कंजर्व करना। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करता है, जो मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ होता है, वासा रेक्टा और जुक्स्टा मेडुलरी। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप लोग को दो टाइप के नेफ्रॉन्स हैं, तो कुछ नहीं, मैंने बताया है ना, दो टाइप के नेफ्रॉन्स में क्या होता है, एक का जो लूप ऑफ हेनली मेडुला तक जा रहा है, एक का मेडुला तक जा रहा है, एक मेडुला तक नहीं जा रहा है। जिसका नहीं जा रहा है वो कॉर्टिकल एरिया में रह रहा है, इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जिसका जा रहा है वो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और इसका जुक्स्टा मेडुलरी जो होता है वो मेजर रोल वाटर कंजर्वेशन, यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में वाटर कंजर्वेशन होता है, इसके थ्रू होता है। ये लॉन्ग होता है, ऑब्वियसली लॉन्ग होगा क्योंकि मेडुला तक जा रहा है, ये शॉर्ट है ना। लेंथ में अगर लूप ऑफ हेनली की बात करें, तो देखो इसकी जो लूप ऑफ हेनली मेडुलरी जुक्स्टा मेडुलरी का लंबी है और इसकी शॉर्ट है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन, अगर लेंथ की बात करो। उसके बाद याद रखना कि नंबर जो होते हैं इसका 80 to 85% होता है कॉर्टिकल वाले का, और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का 50 to 20% होता है। और इसमें ऑब्वियसली वासा रेक्टा होगा नहीं, और इसमें है वासा रेक्टा, और वही काउंटर मैकेनिज्म में आगे काम आएगा। ये पर्ट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है ऑब्वियसली, और ये भी बनाता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इसमें लेस होता है, इसमें मोर, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म से की वजह से ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन किस में ज़्यादा होता है, जिन ऑर्गेनिज्म में जुक्स्टा मेडुलरी या जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वाले पार्ट में ज़्यादा होता है। ओके, इसका कोई रोल नहीं होता है इन वाटर कंजर्वेशन। यू कैन राइट हियर, नो रोल इन वाटर कंजर्वेशन। ऑब्वियसली जब काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं हो रहा है तो कॉर्टिकल में, तो क्यों उसमें वाटर कंजर्वेशन होगा। इसमें देयर इज़ अ रोल इन वाटर कंजर्वेशन। ओके, याद रखना। नाउ मूविंग फर्दर, so students, once again we'll see the structure of nephron. This is the glomerulus. Okay, ये एफरेंट आर्टियोल है, इफरेंट आर्टियोल जिससे ब्लड आता है, एफरेंट आर्टियोल जिससे ब्लड चला जाता है वो इफरेंट आर्टियोल है। ओके, देन दिस इज़ द पर्ट्यूबुलर कैपिलरी, जो ऊपर डीसीटी वाले पार्ट पे जो ब्लड कैपिलरी रहती है उसका पर्ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। जो नीचे लूप ऑफ हेनली वाले पार्ट पे होता है उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो बोमन्स कैप्सूल है ये पैराइटल होता है, और इसमें जो सेल्स मॉडिफाइड होते हैं, यहाँ पे सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स मॉडिफाइड होते हैं उसको हम कहते हैं पोडोसाइट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आगे बताऊंगी। जो पोडोसाइट्स को एकदम इम्पॉर्टेंटली आप लोग लिखिए कि ये सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली ग्लोमेरुलस में। ओके, देन ये क्योंकि ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, मेड्यूला वाले पार्ट में अगेन यू हैव टू नो दैट ये जो लूप ऑफ हेनली होता है, और ये लूप ऑफ हेनली भी याद रखना असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब होता है। लूप ऑफ हेनली में दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग लिम्ब, दिस इज़ द असेंडिंग लिम्ब, दिस इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब इनफैक्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली,
and this is the ascending limb of loop of Henle. Very important. The ascending limb is impermeable to electrolytes, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं परमिएबल है, जबकि इसमें एक्वापोरिन्स है, इसलिए वाटर परमिएबल है. याद रखना, इसमें इस पार्ट में वाटर परमिएबल है और इस पार्ट में उल्टा, इसमें इट इज़ permeable to what? Electrolytes. This is permeable. The ascending limb is permeable. Sorry, this is the descending limb. The descending limb and this is the ascending limb of loop of Henle. This is the black part is the loop of Henle. ये जो descending limb is impermeable to electrolytes but permeable to water, and this is ulta. It is impermeable to water but permeable to. See, ये पूरे पेज में मैंने सारे नोट्स लिख दिए हैं. ठीक है, तो लूप ऑफ हेनली में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है. ओके, जबकि पीसीटी में क्योंकि उसमें ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ये जो पीसीटी वाले पार्ट पे है, जो पीसीटी पार्ट में क्योंकि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसको ज्वाइन करिए आपने, मैंने ज्वाइन नहीं किया. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. मिनिमम लूप ऑफ हेनली में होता है. ये भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया भी था. ओके, देन यू हैव डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. तो ये डीसीटी है, कनेक्टिंग डक्ट है. डीसीटी तो हमारा कौन से वाले पार्ट में, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में. याद रखना कौन से पार्ट में है किडनी के. हाँ, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, किस पार्ट ऑफ किडनी में. ओके, डीसीटी एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो होता है, ये फैसिलिटेटेड एंड कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है. क्या होता है? फैसिलिटेटेड एंड कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, यानी कि कुछ देखो, एक तो होता है ना यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे कुछ चीज़ें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम फैसिलिटेटेड एंड कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं. सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशंस. नाउ मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन. कि एक्सक्रीशन जो है वो दो तरीके से होता है. एक तो होता है पहले उसमें यूरिया फॉर्मेशन होता है. सी एज यू कैन सी, जो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन होता है वो दो पार्ट में होता है. एक तो यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है और एक यूरिन फॉर्मेशन. राइट, यूरिया फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा लीवर में होता है. यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है. ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है. याद रखना, डिफरेंस याद रखना कि यूरिया का फॉर्मेशन लीवर पे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है. ओके, सेकेंड पार्ट आपको याद रखना है कि जो यूरिया फॉर्मेशन लीवर के कौन से सेल में होता है, हेपेटोसाइट्स. कहाँ पे होता है? हेपेटोसाइट्स. कहाँ होता है? हेपेटोसाइट्स. वेरेस किडनी में तो आपको वो तो मैं डिटेल में बता ही रही हूँ. ओके, तो इसी साइकिल को हम कहते हैं यूरिया साइकिल. इसको हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल भी कहते हैं बनने वाले पार्ट को यूरिया के. या इसको हम क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं या ऑर्निथाइन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पहला यूरिया बना था, फर्स्ट एमिनो एसिड जो जिससे वो बना था वो ऑर्निथाइन था, और इसी वजह से उसको ऑर्निथाइन साइकिल भी बोलते हैं या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं. एंड मूविंग फर्दर you should know. So as you can see, the urine formation is divided into three parts: ultrafiltration, reabsorption and tubular secretion. तो ये टर्म्स आए क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा समझो एक नेफ्रॉन है. अभी एक नेफ्रॉन में आप लोग नोटिस करिए, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि ब्लड आया, ब्लड से बहुत सारे फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, और वो ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल से हार्ट को चला गया. ठीक है, यहाँ पे ये काम हो गया. राइट, यहाँ पे ये काम हो गया. बट देखो मैक्सिमम जैसे ना ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे फिल्ट्रेट, यानी कि ग्लूकोज, बहुत सारे जो ज़रूरी चीज़ें, यूज़फुल नॉन यूज़फुल, सारी जो फिल्टर हो जाता है. मतलब इसी वजह से वापस से थोड़ी, मतलब ये जो पीसीटी में वापस से जो अच्छे यूज़फुल सब्सटेंसेस वापस से ब्लड में चले जाते हैं. देखो ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, तो वापस से ये नेफ्रॉन से ब्लड में जाते हैं. इसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन. उसके बाद आगे चल के वापस से ये जो ट्यूब से सिक्रीशन होते हैं, ओके, और भी ज़रूरी चीज़ों के सिक्रीशन होते हैं, उसको कहते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन. समझ में आया? जो यूरिन फॉर्मेशन में, और फिर फाइनली जो अनवांटेड वेस्ट होता है वो एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकल जाता है.
ठीक है, तो मैंने क्या क्या कहा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसमें देखो 3 पार्ट्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। आई एम नॉट रिटन इट, यू कैन राइट इट डाउन। यहाँ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलर्स होता है। रीअब्जॉर्प्शन में रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। हाँ, मैंने कहा बहुत सारी फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन वापस से ब्लड में जो बाय मिस्टेकली, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ना सब कुछ निकल आता है ब्लड से, जो बॉडी को ज़रूरत है, यूज़फुल नॉन यूज़फुल सारी चीज़ें फिल्टर की तरह ग्लोमेरुलर फिल्टर बन जाता है, लेकिन फिर से वो नेफ्रॉन से वापस से ब्लड में जाता है इन द फॉर्म ऑफ ओजियस प्रोसेस से रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद सिक्रीशन या ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं सिक्रेट्स क्या, दे सिक्रेट H+, K+ अमोनिया इनटू फिल्टर एंड फाइनली द यूरिन इज फॉर्म्ड। ओके, तो इफ़ आई डिटेल में अगर मैं बताऊं तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं, ओके, वो ब्लड प्रेशर से, बहुत प्रेशर से ब्लड आ रहा है ना, बहुत प्रेशर से ब्लड आता है तो ग्लोमेरुल में आ जाता है, एंड देन वहाँ से क्या होता है, बहुत प्रेशर से ब्लड आएगा तो क्या होगा, ये 3 लेयर्स से उसको जाना पड़ता है, उसको 3 यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं। यू कैन सी इट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, द एंडोथेलियम, द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल एंड द एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये 3 लेयर में जाने के बाद यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी करने की कोशिश की है, द एंडोथेलियम, ओके, ये समझो ये ग्लोमेरुलर है, ये ग्लोमेरुलर का मैंने एक पार्ट ये वो कर दिया उसको, यू नो मैग्नीफाई करके बता रही हूँ, क्योंकि ये पोडोसाइट्स है ना, ये पोडोसाइट्स है ना, पोडोसाइट्स के ऊपर ही तो 3 लेयर होते हैं, राइट। जो फर्स्ट लेयर होगा वो एंडोथेलियम होगा, लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी। उसके बाद में एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और बेसमेंट लेयर, और मैं देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्लिट मेम्ब्रेन, तो ये तीनों चीज़ें हैं, राइट। यहाँ से इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना है, यानी कि अंदर आना है ब्लड को ये 3 लेयर क्रॉस के, ये तीनों लेयर्स यहाँ पे है, यहाँ अंदर क्रॉस करके अंदर आना है, राइट। जैसे ही अंदर आना है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, यू नो, ये जहाँ जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो फॉर्म हो रहा है, फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR। GFR इज नथिंग बट योर, व्हाट इज इट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इट इज GFR हो रहा है, जितने प्रेशर से आ रहा है उसको हम GFR बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि 125 ml पर मिनट होता है। इसका मैं कैलकुलेशन बताऊंगी। अगर 125 ml पर मिनट होगा तो आप लोग ये आंसर बताओ कि 24 आवर में कितना फिल्ट्रेट बनेगा, 24 आवर में कितना बनेगा, 180 लीटर, राइट, पर मिनट, पर डे, यस और नो। सो दिस इज़ योर बेसिक मैथमेटिक्स। तो फिल्ट्रेशन जो होता है उसमें से देखो, जब भी कोई चीज़ फिल्टर हो रही है ब्लड से, तो जो लिक्विड पार्टी तो ऑफ द ब्लड 2 पार्ट है ना, ब्लड में 2 पार्ट है, राइट। एक होता है प्लाज्मा और होता है सेल्स। जो सेल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो प्लाज्मा नीचे आता है, राइट, ये याद रखना। और प्लाज्मा ही सब में ही सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है हमारे, ग्लूकोज और यूरिया और बाकी चीज़ें ना। फिल्ट्रेशन में प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स हुआ, राइट, प्रोटीन और सेल्स ऊपर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है फिर फिल्ट्रेशन में, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा। अब रीअब्जॉर्प्शन वाली पार्ट तो मैंने आप लोग को बताई है, ओके। एक पॉइंट याद रखना, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है या ये हमारा GFR है, ओके, मतलब द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट, उसको GFR बोलते हैं। यहाँ पे इट्स कंट्रोल बाय जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, दैट इज़ योर JGA, याद रखना, JGA, जुक्स्टा मेडुलरी अपैरेटस, ओके। और जो 99% फिल्ट्रेट है हमारा, देखो GFR जो होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो इसका डेफिनेशन तो मैंने बताया, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय किडनीज, ओके, पर मिनट। उसमें से मैंने कहा 125 मिलीलीटर पर मिनट बनता है, तो 125 इंटू 60 इंटू 4 180 लीटर पर डे होगा। और इस 180 लीटर में क्या ये 180 लीटर फिल्ट्रेट पूरा बॉडी से निकल जाता है क्या? नहीं, इसका सिर्फ 1% यूरिन बनता है, पूरा 180 लीटर बॉडी से नहीं निकलता, जबकि 99% रीएब्जॉर्ब्ड होता है, ओके। कितना? 99%
फिल्ट्रेट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब्ड होता है बाय होम, बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ओके। और इसी वजह से 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है। ये तो पतला सा था, लेकिन जो यूरिन बनता है वो 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है। तो ये प्रोसेस जहाँ पे वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो रीअब्जॉर्प्शन कहलाया जाता है। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी एंड कन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग डक्ट्स करते हैं। तो आई होप यू ऑल नो व्हाट वेर इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, ओके, आई श्योर यू ऑल नो। तो पीसीटी में क्या, देखो सब पीसीटी में अलग चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है ना। लूप ऑफ हेनली में ज़्यादा करके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं रीअब्जॉर्ब। और डीसीटी है, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सोडियम की, ग्लूकोज की, एमिनो एसिड एक्टिवली होता है, यूरिया पैसिवली होता है। और डीसीटी एंड सीडी में वाटर एंड सॉल्ट होता है, मतलब जो बचा कुचा, अगर समझो हर किसी के, बहुत से लोगों के बॉडी में बहुत सारा सॉल्ट होता है ना, तो वो इस स्टेप में नहीं होता है, फिर वो डीसीटी एंड सीडी तक करना पड़ता है, ठीक है। फिर सिक्रीशन जो हो रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप है सिक्रीशन, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वही वाला पार्ट, मतलब बहुत से लोगों में ज़्यादा, कभी कभी ना हम लोग एक्सेस चिप्स खा लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो कभी कभी हमारे जो नेफ्रॉन को फिर काम करना पड़ता है डॉक्टर बन के कि बाबा इनका पीएच मेंटेन रखना है, ब्लड का भी पीएच मेंटेन रखना है, इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि एक्सेस H+ K+ अमोनिया जो है निकाल देता है। और ये काम किससे हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन से। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जो पीसीटी होता है वो ज़्यादा करके क्या करता है, ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्जॉर्ब यहाँ पे होता है। लूप ऑफ हेनली में हाई ऑस्मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है मेड्यूलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर, मतलब अगर ज़रूरत है तो, और मेंटेन्स पीएच एंड सोडियम बैलेंस। यहाँ पे इसको ना यहाँ ये करने के लिए इसको हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आप लोग को। 2 हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं अभी बताऊँगी। और यहाँ पे भी सीडी को भी एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, एडीएच, यहाँ पे भी एडीएच और अल्डोस्टेरॉन की ज़रूरत पड़ती है, हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए। और जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH पे, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, वाटर इज रीअब्जॉर्ब। और जो फाइनली जो यूरिन बनता है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है। सो यही हमारा मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन क्या है। तो जो फिल्ट्रेट है वो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट 2 लिम्स में जाता है, लूप ऑफ लिम्स ऑफ हेनलीज का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म काउंटर करंट। और इस काउंटर करंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।